اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کے ذکر سے دل زخمی ہو جاتے ہیں اور جن کے فیصلوں نے امت مسلمہ کو صدیوں تک رلایا۔ انہی میں سے ایک نام ہے یزید بن معاویہ۔ وہ شخص جس کے دور میں نواسِ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، وہ شخص جس پر مدینہ طیبہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا، اور وہ شخص جس کے دور میں خانہ کعبہ کو آگ کے شعلے میں لپیٹا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یزید کو کبھی اس ظلم کا انجام ملا؟ کیا یزید کی موت عام لوگوں جیسی تھی؟ کیا واقعی اس پر کوئی عذاب نازل ہوا تھا، یا پھر وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا؟ آج ہم جانیں گے یزید کی موت کے پیچھے چھپی وہ تمام روایتیں جنہیں اکثر لوگ جاننے سے قاصر ہے۔ یہ ایک نیک، تحقیقاتی اور تاریخی ڈاکیومنٹری ہے جس میں ہم یزید کی زندگی کے آخری لمحات، اس کی بیماری، موت اور اس کے بعد کے حالات کو قرآن، حدیث اور مستند تاریخ کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اسلامی تاریخ کی وہ متنازع شخصیت جس کا ذکر آتے ہی امت کے دل دکھ سے بھر جاتے ہیں۔ یزید کی پیدائش سن 25 ہجری میں ہوئی۔ اس کا مکمل نام تھا یزید بن معاویہ بن ابو سفیان۔ وہ بنو امیہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو قریش کے طاقتور قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو خلافت راشدہ کے بعد صحابہ کرام کے دور کے ایک اہم حاکم بنے۔ انہوں نے اپنی خلافت کو سیاسی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں ہی خلیفہ مقرر کر دیا۔ یہی بات اسلامی تاریخ میں وراثتی خلافت کی شروعات کا سبب بنی، جس پر اس وقت کے بہت سے ذلیل القدر صحابہ اور اہل بیت کو سخت اعتراض تھا۔ یزید کی ابتدائی تربیت فوجی ماحول میں ہوئی۔ وہ رومیوں کے خلاف جنگوں میں بھی شریک رہا اور کچھ روایتوں کے مطابق قسطنطنیہ کی جنگ میں بھی شامل تھا۔ لیکن یزید کی شخصیت کے کئی پہلو متنازع ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ شعر و شاعری کا شوقین تھا، لیکن وہ کافی زیادہ شکار اور شراب جیسی عادتوں میں ملوث پایا گیا، اور اس کی محفلیں اکثر عیاشی اور دنیا پرستی سے بھرپور ہوتی تھیں۔ اسی وجہ سے کئی علماء اور تاریخ دانوں نے یزید کی دینداری کو مشکوک قرار دیا۔ جب امیر معاویہ کی وفات ہوئی تو یزید کو سن 60 ہجری میں خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اس وقت وہ تقریباً 35 سال کا نوجوان تھا۔ یزید کے خلیفہ بنتے ہی ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اسلامی خلافت میں وراثت کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جو خلافت راشدہ کے نظریے کے خلاف تھا، جس کے چلتے مدینہ کے جلیل القدر صحابی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، مکہ کے حاکم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور کئی دیگر تابعین نے یزید کے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کا اصلی چہرہ بدلنے لگا تھا اور ظلم و زور کا آغاز ہونے لگا۔ یزید کی حکومت صرف 3 سال رہی، لیکن ان 3 برسوں میں ایسے 3 ہولناک واقعات پیش آئے جنہوں نے اس کا نام تاریخ میں سیاہ کالے حروف سے لکھوا دیا۔ سب سے پہلے تو واقعہ کربلا، جس میں نواسِ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد واقعہ ہرہ، جہاں مدینہ طیبہ پر لشکر کشی اور اہل مدینہ کی بے حرمتی کی گئی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ پر بھی حملہ کیا گیا، جہاں مکہ مکرمہ پر چڑھائی اور کعبہ کو آگ لگنے کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کے بعد یزید کے خلاف نفرت بڑھتی گئی اور لوگ اسے ظالم اور فاسق کے لقب دینے لگے۔ یزید کا خلیفہ بننا امت مسلمہ کے لیے صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا زخم تھا جو آج بھی ہرا ہے۔ جیسے ہی یزید نے حکومت سنبھالی اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کی تو بہت سے ذلیل القدر صحابہ اور اہل بیت کے افراد نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلا انکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یزید جیسا شخص خلافت کا اہل نہیں اور نہ میں اس کی بیعت کروں گا۔ یہی انکار بعد میں واقعہ کربلا کی صورت میں خون میں ڈوبا۔
यजीद की सल्तनत वो थी जो इक्तिदार के लिए नवासाए रसूल का सर तन से जुदा करने पर भी तैयार थी। मदीना और मक्का में गुस्सा और एहतिजाज। मदीना मुनव्वरा में सहाबा किराम और ताबईन का एक गिरोह यजीद के खिलाफ सरापा एहतिजाज बन गया। इन लोगों ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इसी पर यजीद ने मदीना पर लश्कर कुशी का हुक्म दिया, जो तारीख में वाक़िया ए हर्रा के नाम से याद किया जाता है, जिसमें यजीदी फौज ने मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, सैकड़ों सहाबा के बेटे शहीद कर दिए गए और मदीना की हुर्मत पामाल की गई। इसके अलावा जब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मक्का मुकर्रमा में यजीद के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया तो यजीद ने अपनी फौज को मक्का पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। इसी चढ़ाई में खाना काबा को आग लग गई, काबा का गिलाफ जल गया और कई हुज्जाज शहीद हो गए। ये वाक़यात सिर्फ सियासी नहीं थे, ये दीन इस्लाम के जिगर पर वार थे। इस्लामी दुनिया में यजीद के खिलाफ शदीद नफरत फैल चुकी थी। लोग उसे फासिक, फाजिर और जालिम हाकिम कहने लगे। कई मशहूर मुहद्दिसीन और उलमा ने भी उसके खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, यजीद पर लानत न भी भेजी जाए मगर उसे नेक भी ना कहा जाए। इमाम गजाली ने फरमाया, यजीद की खिलाफत बदात थी और उसके आमाल इस्लाम के चेहरे पर दाग हैं। अल्लामा इब्नुल जौज़ी और अल्लामा ज़हबी जैसे मुहद्दिसीन ने उसे फासिक और गुमराह लिखा। यहाँ तक कि अहले शाम जो यजीद की कौम और हिमायत में थे, वो भी आखिरकार उसके खिलाफ बोलने लगे। यजीद अब सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाम बन चुका था जिससे उम्मत मुहम्मदिया का दिल छलनी हो चुका था। क्या ऐसा शख्स कभी चैन से मर सकता है? क्या उस पर कोई अजाब नहीं आया? क्या उसकी मौत आम इंसानों की तरह हुई? आगे चलकर हम देखेंगे यजीद की मौत कैसे हुई। क्या वाकई उसके जिस्म पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, या वो भी दुनिया के बाकी जालिम बादशाहों की तरह खामोशी से दफन हो गया? यजीद की हुकूमत का इख्तिताम भी उसके आमाल की तरह खौफनाक था। इस्लामी तारीख में यजीद की मौत के मुतालिक कई रिवायात मिलती है, जिनमें से बाज़ उसे तबीयी मौत बताती है और बाज़ उसे अल्लाह का अजाब करार देती है। आइए इन तमाम रिवायात को तरतीबवार देखते हैं। पहली रिवायत जो सबसे मशहूर और मुस्तनद समझी जाती है वो ये है कि यजीद की मौत सन 64 हिजरी में हवारान, शाम के करीब एक मकाम में हुई। उस वक्त वो महज 38 या 39 साल का था। वो एक नामालूम बीमारी में मुब्तला हो गया जिसने उसे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। बाज़ तारीखदान कहते हैं कि ये बीमारी आंतों की खराबी या दिमागी सूजन थी और 15 से 20 दिन तक वो शदीद तकलीफ में रहा और फिर मर गया। इसके साथ एक और रिवायत भी है जिसमें कुछ मुहद्दिसीन और मुर्खीन ने लिखा है कि यजीद की मौत से चंद दिन पहले उसका चेहरा सियाह हो गया, उसकी नाक गल गई और चेहरे से शदीद बदबू आने लगी। ये लोग कहते हैं कि ये अल्लाह के अजाब की एक सूरत थी। इमाम सुयूती रजूद अपनी किताब तारीखुल खुलफा में लिखते हैं कि यजीद की लाश से ऐसी बदबू आने लगी कि लोग दफन के वक्त करीब न जा सके और कई दिन तक लाश जमीन पर पड़ी रही। इसके साथ साथ एक अजीबो गरीब और मशहूर रिवायत भी पेश की जाती है कि यजीद जब मरा तो दफन के कुछ दिन बाद कब्र फट गई और लोगों ने देखा कि एक काला सांप उसकी नाक और आंख से बाहर निकल रहा था। ये रिवायत आवामी हलकों में बहुत मशहूर है और सूफिया व जाकरीन की मजलिसों में अक्सर सुनाई जाती है। मगर याद रखें, यह रिवायत ज़ईफ़ुल संद है, यानी इसका मुस्तंद होना मशकूक है, लेकिन कई बुजुर्गान दीन ने इसे इबरत के तौर पर नकल किया है। इसके अलावा एक और मशहूर रिवायत है कि यजीद की कब्र से आग के शोले निकलने लगे। लोग कब्र के करीब न जा सके और कब्र की जगह को खौफ की अलामत समझा जाने लगा। यह भी गैर मुस्तंद रिवायत है, लेकिन सूफी मकातिब फ़िक्र में इसे अजाब की निशानी समझा जाता है। यजीद की मौत पर मोरखीन का इत्तफाक है कि वो ज़िल्लत आमेज़ अंजाम का शिकार हुआ। न उसकी सल्तनत बची, न उसका नाम इज्जत से लिया गया और न उसका बेटा मुआविया बिन यजीद खिलाफत चला सका, बल्कि उसके बेटे ने तो 3 माह बाद ही खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और खुद ऐलान किया कि मेरे बाप और दादा ने जुल्म किया, मैं उनके रास्ते पर नहीं चलूंगा। यजीद की मौत कोई आम वाक़या नहीं था, ये एक इबरत का मंजर था, एक जुल्म के अंजाम की अलामत, जो हमें ये सबक देती है कि चाहे कितना भी ताकतवर जालिम हो,
अल्लाह का निज़ाम कभी जुल्म को दुआम नहीं देता। यजीद की मौत के बाद बनु उमैया की हुकूमत एक ज़बरदस्त बहरान का शिकार हो गई। न सिर्फ खिलाफत कमज़ोर पड़ गई, बल्कि पूरे आलम इस्लाम में एक सियासी और मजहबी खला पैदा हो गया। यजीद के बाद खिलाफत उसके बेटे मुआविया बिन यजीद को मिली। वो सिर्फ 21 साल का नौजवान था और इंतहाई कमज़ोर मिजाज और इबादत गुजार समझा जाता था। खिलाफत संभालने के बाद मुआविया बिन यजीद ने सिर्फ 40 दिन या 3 माह तक हुकूमत की। उसने एक दिन मिंबर पर खुतबा देते हुए कहा, मेरे वालिद यजीद ने खिलाफत का हक अदा नहीं किया। मैं न खुद को इसका अहल समझता हूँ, न उनके गुनाहों में शरीक होना चाहता हूँ। ये ऐलान सुनकर लोग हैरान रह गए। फिर उसने रज़ाकाराना तौर पर खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और कुछ दिन बाद उसे जहर देकर शहीद कर दिया गया। मुआविया बिन यजीद के इनकार के बाद बनु उमैया की खिलाफत खाली हो गई। दमिश्क और शाम में उमवी खानदान ने मरझाए हुए सियासतदानों और फौजी सरदारों से मशवरे शुरू किए, लेकिन कोई भी खिलाफत का बोझ उठाने को तैयार न था। इस्लामी दुनिया में उस वक्त 3 बड़े मराकज़ बन चुके थे। सबसे पहले मदीना, जहां अहले बैत और ताबेईन मौजूद थे। दूसरे नंबर पर मक्का, जहां अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ने खिलाफत का ऐलान कर रखा था। और तीसरा शाम, जहां बनु उमैया कमज़ोर होते जा रहे थे। यजीद की मौत के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को हुआ। उन्होंने मक्का मुकर्रमा में खिलाफत का ऐलान किया और बड़े बड़े सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह और ताबेईन ने उनकी बैत कर ली। तकरीबन पूरा हिजाज, यमन, इराक, खुरासान और मिस्र इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह के साथ हो गया। बनु उमैया अब सिर्फ शाम और चंद अतराफ के इलाकों तक महदूद हो गए। अब खिलाफत 2 धड़ों में बट गई। एक तरफ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह, जिन्हें आवामी हिमायत हासिल थी। दूसरी तरफ बनु उमैया, जिन्होंने बाद में मरवान बिन हकम को खलीफा बनाकर हुकूमत बचाने की कोशिश की। इस तकसीम ने इस्लामी खिलाफत को खाना जंगी की तरफ धकेल दिया, जिसे बाद में तारीख ने फितना सानिया कहा। उम्मत मुस्लिमा अब इत्तेहाद से दूर हो चुकी थी। यजीद के दौर के मजालिम, खास तौर पर करबला, वाक़िया हर्रा और काबा पर हमला उम्मत की रूह को जख्मी कर चुके थे। उलमा, सहाबा, ताबेईन सब मैदान सियासत से नफरत करने लगे। ये सब कुछ यजीद के 3 साला जुल्म, फिस्क और फितना पर मबनी हुकूमत का नतीजा था। यजीद मर गया, लेकिन उसका नाम आज भी नफरत, जुल्म और फितना की अलामत के तौर पर जिंदा है। उसने 3 साला खिलाफत में वो कुछ किया जो सदियों बाद भी उम्मत के जख्मों को हरा कर देता है। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना, मदीना मुनव्वरा पर हमला, खानाए काबा को आग लगवाना, ये सब कुछ एक ऐसे शख्स के दौर में हुआ जिसे ताकत मिली मगर हिदायत ना मिली। यजीद के अंजाम से हमें एक ज़बरदस्त सबक मिलता है। जिस शख्स के दिल में खौफ खुदा ना हो, वो चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन जिल्लत से मिट जाता है। यजीद के पास खिलाफत, माल, लश्कर, ताकत सब कुछ था, लेकिन अल्लाह की अदालत में करबला का लहू, मदीना का दर्द और मक्का का मातम उसके लिए बद्दुआ बन गया। और इसमें नौजवानों के लिए एक बेहतरीन सबक है। इस तारीख को सिर्फ एक किस्सा ना समझो, ये आईना है जो तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल दिखा सकता है। करबला हमें सिखाता है, हक के लिए खड़े हो जाओ, चाहे तादाद कम हो। जालिम के खिलाफ बोलना ईमान की अलामत है, और खामोशी, बुज़दिली और मुनाफिकत ये यजीदी सिफात है। जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया कमाना, ताकत हासिल करना या ऐश व आराम नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा, दीन की सरबुलंदी और जुल्म के खिलाफ खड़े होना। यही हुसैनी फ़िक्र है, यही इस्लाम का असल चेहरा है। यजीद गुजर गया, लेकिन सवाल बाकी है, आज हम किसके रास्ते पर हैं? हुसैन अलैहिस्सलाम के या यजीद के? फैसला हमें करना है, अभी इसी लम्हे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती, ईमान अफरोज़ और तारीख़ इस्लाम की सच्चाई पर मबनी लगी हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही तहकीकी, सच्ची और गैर जानिबदार इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज़ आप तक मुसलसल पहुँचाते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी एक सपोर्ट हमारे हौसले को कई गुना बढ़ा देती है।
تو دوستو، یہ تھی کمل اسلام کی طرف سے پیش کردہ یزید کی موت اور اس کے بعد کا مکمل تاریخی منظرنامہ۔ اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے اور باطل سے نفرت عطا فرمائے، آمین۔